Hello, Yash. Good afternoon. Yeah, very good afternoon, ma'am. Yeah. So, good afternoon, students. As students are joining, we will take a two minutes and then we'll start with the session. Till the time, I just want to introduce about the Yash Mukta. He is our alumni and very excellent student. The topic on which Yash is going to give a webinar today before from last 3 years he is giving the webinar or taking a session on same topic for web development. So this is a third to fourth time Yash is taking a seminar on this topic. फर्स्ट टाइम जब यश ने ये टॉपिक पे सेशन लिया था, मतलब हाउ टू होस्ट वेबसाइट फ्रीली, तभी वो खुद ही स्टूडेंट था हमारे इधर। जब वो बी में था तो उसने, जब वो फाइनल ईयर में था तब हमारे थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए उसने ये सेशन लिया था। एंड फ्रॉम दैट ईयर अब तक उसने हर साल ये सेशन बहुत अच्छे से लिया है। एंड आफ्टर दिस सेशन ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट हैज होस्टेड देयर वेबसाइट वेरी सक्सेसफुली। So thank you so much, Yash. Yeah, ma'am, pleasure is all mine. Yash has completed his B Computer in 2019-20. He is currently working in a Capgemini India and working as an analyst, software engineer as a post. His works experience is he is very master in Java, enjoyed app development, full stack developer, web developer. In full stack he is mainly having his own expertise in mean and MERN development. And without wasting our time, I request Yash to start his session. So I'm just giving the sharing right and I'm stopping my screen share. Yes, ma'am, sure. Yes, you can share your screen and you can start the session. Yes, Students, write down all the points, whatever the Yash is going to explain to you, because बहुत अच्छे अच्छे टिप्स वो देता है कि वेबसाइट फ्रीली कैसे होस्ट करना चाहिए। तो कोई भी आप स्टेप मिस मत करो। ऐसे तो मैंने रिकॉर्डिंग के लिए लगाया है, बट स्टिल यू हैव बी विथ योर पेन एंड पेपर एंड राइट डाउन एवरीथिंग वेरी प्रॉपरली। Yes, you can start. yeah. Okay, folks, very good afternoon and warm welcome in this session. I would like to thank SNJB, entire computer department, and especially Kyosara ma'am for giving me the opportunity for hosting the webinar. And I'm glad enough to have you all here, and I'm thankful to you also that you are attending this webinar, and I hope that you take maximum benefit from it. All right. So, folks, so I would like to know that what language will you be comfortable in, Hindi or English or mix? यश बी मिक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Yeah. थोड़ा Okay. हिंदी थोड़ा इंग्लिश, खाली Yeah. थोड़ा सा वॉल्यूम आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, थोड़ा सा। Okay. Okay. Is it good now? हाँ, yeah. Okay. So before proceeding further, I would like to ensure that all of the participants are actively participating in the session, so that you know हमें थोड़ा बहुत मजा भी आएगा। ऐसे नहीं होगा कि it is a boring presentation and you guys are just here for the sake of attendance. So please try to make a maximum benefit out of this session. Okay. All right. Yeah. So I would like to ask you what you can depict from this figure on the screen. Can anyone answer? Hello. स्टूडेंट्स, ये इंटरेक्टिव रहेगा तो यश को अच्छा लगेगा। आप में से ही वो एक स्टूडेंट है,
जो हमारा स्टूडेंट रह चुका है, अगर उसके कुछ क्वेश्चन का आप आंसर दोगे तो उसके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। सो यू कैन जस्ट स्टार्ट योर माइक एंड गिव द आंसर कि जो इमेज है वो इमेज को देख के कुछ समझ में आ रहा है क्या, कुछ टैग वैग जैसा कुछ दिख रहा है, आप बोल सकते हो। Yes, I know that it is a virtual session, so we cannot make that bonding which is there in physical session. And also, I cannot talk to screen. I need to talk with new people. Please, कोई भी एक जन, please try to answer this if you are getting me. All right, I will move forward. So I will let you know. So basically, this was the topic of the seminar that on the left-hand side, you can see that is a free web hosting on 000 web host. And one additional website is also there on which I am going to show the hosting. And secondly, what are the web development trends that are in boom in 2021? So yeah, let us move forward. Okay, so very first question मैं पूछना चाहूँगा what is web development and what is web hosting? कोई आंसर देगा? डेवलपमेंट यानी जो प्रोग्रामर डेवलप करता है पेज का, होस्ट यानी क्लाइंट कैन यूज दैट। What is your good name? राहुल। Yeah, excellent, Rahul. Yeah. So web development जैसे हमको ट्रेडिशनली हम सुनते आ रहे हैं कि वेबसाइट बनाते हैं और उसको होस्ट करते हैं, बट अभी व्हाट इज द सिनेरियो? सो देयर आर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स, मतलब इफ वी कंसीडर मोबाइल फोन्स, देयर आर एंड्रॉइड, iOS, then in some cases there are Symbian and Bada mobile. Again, in computer, if we talk about, then we have very popular Windows, then Mac OS, and last but not the least, Ubuntu. So in सारी operating systems के ऊपर if we say हमको कोई ऐप बनाना है, so nowadays it is possible with the web development. So आपको आगे आगे पता चलेगा कि what I am talking about. So basically now this question arises is what is web hosting? So यहाँ पे there are different definitions which are given here regarding web hosting. So I would like you guys to read it once, then we will go further. Okay, I think you might have read any one of the definitions. So in a nutshell, अगर इसको short में बोलना चाहे तो web hosting is nothing but हम जो भी website बनाते हैं, so हम उसको accessible, मतलब we make it accessible throughout the world wide web, that is internet. So इंटरनेट पे जब हम वेबसाइट को एक्सेस कर पाते हैं, दैट इज नथिंग बट द वेब होस्टिंग. ऑल राइट, सो आगे बढ़ते हैं. व्हाट हाउ द वेब होस्टिंग वर्क? सो इन शॉर्ट, अगर हम ये जो मेथड देखेंगे कि कोई भी वेब होस्टिंग की मेथड ले लो, देयर आर दिस 4 पॉइंट्स दैट आर सिमिलर और व्हाट वी कैन से दे आर इन कॉमन विद ऑल द वेब होस्टिंग टेक्निक्स. तो जनरली क्या होता है कि वेब होस्टिंग में वेब फाइल्स, जो भी हमारी वेबसाइट की फाइल्स है, बी इट PHP फाइल्स, बी इट HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट फाइल्स, और कोई भी टाइप, तो दैट फाइल्स वी आर अपलोडिंग और डिप्लॉइंग ऑन द होस्टिंग सर्वर. अब ये होस्टिंग सर्वर क्या होता है? द होस्टिंग प्रोवाइडर, आप जिस किसी भी होस्टिंग सर्विस का यूज कर रहे हो,
So they have their servers. So on that server आप अपनी file host करते हो. All right. And further then internet है जो भी, तो internet पे you can access the hosting server. तो basically क्या होता है कि whenever a client is requesting any URL on the internet, so वो URL basically क्या होता है कि client वो पेज का एड्रेस वहाँ पे रिक्वेस्ट करता है, एंड देन एज अ रिस्पॉन्स होस्टिंग सर्वर वेबसाइट की जो भी फाइल्स है, मान लो वी हैव index.html फाइल दैट इज अ डिफॉल्ट फाइल और होम पेज फाइल भी थे. सो होम पेज फाइल हमको वो होस्टिंग सर्वर एज अ रिस्पॉन्स देता है. जो भी रिक्वेस्ट हम करते हैं उसका एज अ रिस्पॉन्स HTML फाइल या फिर जो भी विजुअल रिलेटेड फाइल होगा वो हमको रिस्पॉन्स में सर्वर देगा. ठीक है. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो होस्टिंग तो हमने देख लिया, बट नाउ we can say that there are multiple types of hosting, but primarily 5 टाइप की hostings होती है. So basically 5 टाइप की hosting होती है. So starting off with VPS, that is virtual private server. Again we have shared hosting, then we have dedicated hosting, cloud hosting and reseller hosting. So in short मैं आपको बताता हूँ कि what exactly does this means. So VPS basically ये होता है कि जो भी hosting provider है वो हमको एक virtual connection देता है सर्वर को. So basically वो virtual connection के through we are accessing the multiple websites or multiple pages. So यहाँ पे हर शेयरिंग हर टाइप में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. सो बेसिकली ये जो वेबसाइट है वो पर्टिकुलर टाइप के होस्टिंग प्रोवाइड करती है. सो इन केस ऑफ VPS इट इज liquidweb.com. अगेन हम आगे बढ़ते हैं शेयर्ड होस्टिंग की तरफ. सो इन जनरल शेयर्ड होस्टिंग ये होता है कि जैसे हम फ्री होस्टिंग जहाँ कहीं पे हम फ्री होस्टिंग देखते हैं ना, so वहाँ पे all that services use a shared server. So shared server में basically multiple types के मतलब it is not just restricted to single website. वहाँ पे multiple websites host की जाती है और each individual is having the access to that particular उसकी जो खुद की साइट है उसको एक्सेस होता है. Again further we have dedicated hosting. तो dedicated hosting में क्या होता है कि हमको hosting provider, hosting service जो भी provider है, तो वो हमको एक dedicated server का access देता है जो कि उनके पास है. It's just like renting the server. So जो भी हमारी कॉन्फ़िगरेशन है या जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है, तो उस रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे हमको वो सर्वर प्रोवाइड किया जाता है. And on that we host our files. Next we have cloud hosting. So cloud hosting basically cloud in the sense जो भी सर्वर है ये हमारा एक्चुअल सर्वर नहीं होता है. That server is owned by someone else and it is given as a infrastructure or as a part of infrastructure to the particular consumer. तो उसमें फिर हम हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा उसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे कि अगर हमको 100 GB का स्टोरेज चाहिए है, हमको कंप्यूटिंग मेमोरी जो है रैम जिसको हम बोलते हैं वो हमको अगर 16 GB चाहिए, सो अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हम उसको कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कम या ज़्यादा कर सकते हैं इन द केस ऑफ क्लाउड होस्टिंग. एंड रीसेलर वेब होस्टिंग इज अगेन अ टाइप ऑफ होस्टिंग. सो यहाँ पे क्या होता है कि सपोज आई एम अ रीसेलर. सो मैं कहीं से तो वेब होस्टिंग रेंट कर रहा हूँ या फिर मेरा खुद का कोई वेब होस्टिंग है और आई एम गिविंग दिस पर्टिकुलर resources what I am having, I am giving them as a rent. जो मेरे resources है मैं उनको रेंट पे दे रहा हूँ. So in this case
हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वी प्रोवाइड द सर्विस दैट इज एक्सपेक्टेड बाय द क्लाइंट. ऑलराइट, सो अब हम आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड वेब होस्टिंग. ऑलराइट, यहाँ पे स्क्रीन पे एक इमेज दिखाई दे रहा है. So I want anyone to guess what it can be giving a message. ये मैसेज क्या देना चाहता है this image? Hello, folks. I need you to answer, please. Yes, students, have an answer. Otherwise, we cannot move ahead for the session. इमेज में क्या दिख रहा है वो आप बताओ कि क्या है इसका मीनिंग. You at least try. It doesn't matter it is right or wrong, but आप try तो कीजिए. What does it mean? All right, no issue. मैं ही बता देता हूँ. So here there are 4 components. So 4 basic components जो हम देख सकते हैं. एक ये है कि land है, then we have a house, we have a fence, and lastly we have a something called as nameplate here. So अब हम इसको अगर वेब होस्टिंग या फिर वेबसाइट से हम अगर रिलेट कर पाएंगे तो दिस हाउस is a website, okay, and this land is the hosting or hosting provider जहाँ पे हमने हमारी वेबसाइट होस्ट की कर रखी है. And then this fence is nothing but a security. So SSL is the term, secure socket layer, जो कि हम हमारी वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए यूज करते हैं. So this fence acts as a security. It acts as a SSL. And last but not the least, the nameplate. So nameplate is basically the domain जो कि हम यूज करते हैं एक्सेस करने के लिए वेबसाइट को. तो डोमेन जैसे कि google.com हो गया, then amazon.com हो गया. These all are nameplates. So yeah, this is the basic structure what we can say about web hosting. So हमको वेब होस्टिंग प्रोवाइडर चूज करते वक्त हमको हमेशा ये ध्यान में रखना होता है कि व्हाट इज द अप टाइम दैट इज बीन what we can say promised or requested by the hosting provider. Then again हमको ये चेक करना है कि whether that provider is providing SSL, that is HTTPS. हम जब देखते हैं लिंक में URL में, तो HTTPS में that S means that website is a secure website and it has been added with the SSL certificate. All right. So हम अभी next slide देखते हैं. Yeah. So before going to this further topic, I would like to give a small demonstration about hosting the site on different web hosting. So पहले हम students, this is now very important, whatever the Yash is saying. So write down all the point very properly, because for your mini project, whatever you have to upload your project और जो भी आपने वेबसाइट बना उसको आपको होस्ट करना है, जो आपका 9 नंबर का असाइनमेंट है, तो उसका स्टेप्स आपको यश बता रहा है. तो ये सब जन प्रॉपरली नोट डाउन करो और इसको कंप्लीट करना है. So I want everybody now to be active. Yes, yes, you can start. All right, guys. So basically मैं 2 ways में, मतलब जो भी 2 वेबसाइट है जिन पे मैं होस्टिंग आपको डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला हूँ. So very first website is 000 web host and second जो है वो है GitHub. So what is the meaning of showing this 2 demonstration? So हम अगर कंसीडर करते हैं कि हमारी वेबसाइट जो है that we have done in PHP, हमने PHP का यूज करके वेबसाइट बनाई है. So in that case, GitHub would not be able to help you. GitHub पे आप बस static वेबसाइट होस्ट कर सकते हो. Static in the sense जिनमें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट ये 3 चीजों का यूज किया गया है. ऐसी वेबसाइट ही आप यहाँ पे होस्ट कर सकते हो.
एंड कमिंग अप टू द 000, तो यहाँ पे आप एडिशनली इफ यू आर हैविंग PHP तो वो भी आप यहाँ पे होस्ट कर सकते हो, और जो हमारे ट्रेडिशनल स्टैटिक वेबसाइट है वो भी आप होस्ट कर सकते हो। सो आई विल स्टार्ट विथ 000 वेब होस्ट। सो अगर इन केस किसी को बीच में ही कुछ डाउट या फिर कुछ क्वेश्चन होता है तो यू कैन फील फ्री टू इंटरप्ट। ओके, या सो मेरा एक्चुअली यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट है तो आई एम गोइंग फॉर साइन इन, बट आपका अगर नहीं होगा यू फॉर हियर एंड आप नया अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर लेना। फिर जब at the time of login, it is asking you username and password. Once you enter it, आप एक एरिया में या फिर एक डैशबोर्ड में आपको वो लैंड कराएगा। या सो इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको देखने मिलेगा once you log in. So here you can see that there is a create new site button. So हम उस पर क्लिक करते हैं। अगेन हमको ये क्या पूछ रहा है कि वेबसाइट का नाम एंड वट एवर द पासवर्ड वी वांट टू गिव टू द वेबसाइट। सो बेसिकली ये जो भी चीज़ें हैं ये एज एडमिन पैनल यूज होती है जब हमको कोई कॉन्फ़िगरेशन या फिर कुछ चेंजेस करने हैं वेबसाइट में, तो एट दैट टाइम वी नीड दिस यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो मेक श्योर दैट यू सेव इट समवेयर। ओके, तो मैं को कुछ तो नाम दे देता हूँ, डेमो प्रोजेक्ट होस्टिंग, एंड ये पासवर्ड ऑटो जनरेटेड है तो आई वोंट चेंज इट। अभी मैं इसको क्रिएट करता हूँ। It takes some time for getting up the website ready. हाँ, once ये जो भी प्रोसेस था वो once it is completed, ये आपको इस पेज पे लेके आएगा जहाँ पे it is asking you basically 3 options. Build a free website with Zyro, then we have a WordPress site and we have file manager. So बेसिकली क्या होता है कि दिस इज अ सिंपल वेबसाइट बिल्डर। सो यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके नॉर्मल वेबसाइट बना सकते हो। देन वर्डप्रेस तो आप सबको पता ही होगा, हमारा SNJB का जो भी स्टाफ है उन सबके जो ब्लॉग्स है तो वो मोस्टली वर्डप्रेस का यूज करके उन्होंने क्रिएट किए हुए हैं। तो ये एक ऑप्शन आपके पास है। एंड एडिशनली एक चीज़ है कि फाइल मैनेजर। तो अभी मेरे पास एक्चुअली एक साइट ऑलरेडी हमने क्रिएट कर रखी है जो कि बेसिक HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करके बनाई गई है। सो हम उसी को होस्ट करने का ट्राई करेंगे। सो कमिंग बैक टू द साइट, अपलोड पे क्लिक करता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी साइट बना कर रखी हुई है। सो मुझे जस्ट ये फाइल्स अपलोड करनी होगी। तो जैसे ही मैंने अपलोड पे क्लिक किया ये हमको एक पेज पे लेके आया जो कि फाइल्स बेसिकली फाइल मैनेजर है। सो यहाँ पे हम 2 फोल्डर देख सकते हैं, वन इज TMP एंड सेकंड इज पब्लिक अंडरस्कोर HTML। तो अब यहाँ पे ध्यान रखने जैसी एक चीज़ है कि वट एवर द प्रोजेक्ट फाइल्स यू आर होस्टिंग, आप इसको पब्लिक HTML फोल्डर के अंदर डालना। तो अभी जैसे हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो हम अभी पब्लिक HTML फोल्डर में आ गए। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वट एवर द प्रोजेक्ट फाइल्स वी हैव, हमको यहाँ पे जस्ट सिलेक्ट करना है इन सबको एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ऑलराइट, अब यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद तुरंत ही इट इज आस्किंग मी अ कंफर्मेशन फॉर ऑल द फाइल्स एंड फोल्डर। सो मैं जस्ट अपलोड पे क्लिक करता हूँ एंड वी विल गिव इट सम टाइम टू अपलोड द फाइल्स।
स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा होगा कि आपने जो भी वेबसाइट आपने बनाई होगी HTML की, तो आपको HTML के सब पेजेस, उसके अगर आपने कुछ इमेजेस यूज किए होंगे तो वो सब इमेजेस, एवरीथिंग यू हैव टू अपलोड, एक साथ आपको अपलोड करना रहेगा। Yeah, that's great. हमारी सारी फाइल्स अपलोड हो चुकी है। अब हमको क्या करना है, लेट अस गो बैक टू द फर्स्ट टैब एंड ओके सॉरी या अभी जैसे यहाँ पे सारे फोल्डर्स और सारे फाइल्स आ गए, तो अब हमको क्या करना है, हमने जो नाम दिया था ना डेमो डैश प्रोजेक्ट डैश होस्टिंग, तो अब हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, लेट मी हाइड दिस। ओके, अब हमको क्या करना है, ऑन अ न्यू टैब हमको जो सेम नाम देना है, डेमो डैश प्रोजेक्ट डैश होस्टिंग। इतना होस्टिंग। अब इसके बाद में क्या करना है, डॉट 000 वेब होस्ट ऐप .com। ओके, सो वट एवर द नेम वी गेव, ये यहाँ पे आएगा, एंड देन आफ्टर दैट डॉट 000 वेब होस्ट ऐप .com। इतना पार्ट कॉमन रहेगा, इतना जो पार्ट है वो आपका चेंज होगा अकॉर्डिंग टू योर नेम। तो वंस वी गिव एंटर, अब यहाँ पे हमारी वेबसाइट लोड हो रही है, और वट एवर द index.html हमारा जो पेज था, तो आपको ये ध्यान रखना है कि व्हेन यू आर पुटिंग द साइट, तो आपका जो होम पेज है उसका एक या तो नाम index.php हो या तो index.html हो, वट एवर द एक्सटेंशन इंडेक्स नाम से फाइल आपका चाहिए। तो ये बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली वो फाइल को सर्च करता है और यहाँ पे वो रेंडर कर देता है। ठीक है, तो अभी हमारा वेबसाइट फुली फंक्शनल है, कोई भी पेज पे जाओ ये लोड हो जाएगा। ओके, ये जो भी CSS भी हमारा अप्लाई हो रहा है, देन जावास्क्रिप्ट भी अप्लाई हो रहा है, वट एवर द थिंग्स वी हैव रिटन इन द साइट, इट इज फुली फंक्शनल। ओके, सो ये एक चीज हो गया। सो जस्ट फॉर अ शॉर्ट रिकैप, पहले हमने साइन इन या फिर लॉग इन किया, आफ्टर दैट हमने क्रिएट न्यू साइट पे क्लिक किया, आफ्टर दैट क्रिएट साइट के बाद में इट इज आस्किंग अस फॉर द वेबसाइट नेम एंड पासवर्ड, सो हमने वो प्रोवाइड किया। उसके बाद में इट इज आस्किंग अस फॉर 3 ऑप्शंस, दैट इज ज़ायरो और वर्डप्रेस और फाइल मैनेजर। सो एज हमारी साइट ऑलरेडी हमने बना रखी थी, तो वी सिलेक्टेड द फाइल मैनेजर ऑप्शन, एंड उसके बाद हमको वो फाइल मैनेजर के पेज पे लेके गया, जहां हमने public_html फोल्डर के अंदर जाके we have uploaded whatever the files we had in the project folder. Okay, so बाद में at the end हमने जो भी हमारा वेबसाइट का नाम है वो नाम .000 webhostapp.com, ये URL पे हमने हमारी साइट एक्सेस कर ली। So before moving further to GitHub, मुझे ये जानना है कि किसी को कुछ डाउट या कुछ इश्यू है वेब होस्ट 000 वेब होस्ट के बारे में। अगर नहीं होगा तो फिर वी विल प्रोसीड फर्दर टू गिटहब। ऑल राइट, नो इश्यू, लेट्स गो टू गिटहब देन। अब यहाँ पे गिटहब में भी सेम चीज़ें, हमको लॉगिन या साइन अप करना है, एंड मैंने एक्चुअली मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो मैंने साइन इन कर लिया हुआ है, एंड देन यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आया है और जिसमें हमको ये बोल रहा है कि क्रिएट अ रिपोजिटरी। सो क्रिएट अ रिपोजिटरी पे क्लिक करूंगा, एंड उसके बाद में आई होप इट इज विजिबल गाइस, प्लीज समवन कंफर्म। Yes sir, visible. Okay, okay, yeah. So
अभी क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करने के बाद में इट इज टेकिंग मी टू सम पेज जहाँ पे ये कुछ चीजें हमको पूछ रहा है। सो इम्पोर्टेंट क्या है कि अभी मेरा जैसे यश था यहाँ पे यूजर नेम है, तो उसी नेम से मैं यहाँ पे रिपोजिटरी बनाऊंगा, यश था, एंड बस आगे मुझे .github.io इतना अपेंड करना है, ठीक है। whatever योर यूजर नेम, जो आपने अकाउंट क्रिएशन के वक्त आपने यूजर नेम डाला था वो .github.io, ओके। सो दिस इज मैंडेटरी, ओके, दिस github.io, ये आपको ख्याल रखना है कि दिस यू ऐड एट द टाइम ऑफ creating a repository in the repository name field, okay। सो डिस्क्रिप्शन को तो हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं, उसको कोई जरूरत नहीं है। देन मेक श्योर कि आपका जो रिपोजिटरी है यू कीप इट एज अ पब्लिक, ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ऐड अ रीडमी फाइल पे क्लिक करेंगे एंड क्रिएट अ रिपोजिटरी पे क्लिक करेंगे, ओके। सो अभी यहाँ पे वी कैन सी दैट ये जो भी सेक्शन है यहाँ पे हमारी फाइल्स दिखाई देती है। सो हमने जैसे readme.md फाइल readme पे क्लिक किया हुआ था प्रीवियस स्टेप में, तो इसने यहाँ पे readme.md बेसिक फाइल बना दिया। अब हमको क्या करना है, ऐड फाइल पे क्लिक करना है और वी हैव टू सिलेक्ट अपलोड फाइल, ओके। एंड अच्छा, देर इज वन अनदर वे, अगर हम ये वे से अगर करेंगे तो व्हाट विल हैपन, जो भी हमारे फाइल थे वो सब ऐड होंगे, बट जो हमारे फोल्डर थे और उनके अंदर जो फाइल थे वो ऐड नहीं होंगे, दैट इज द थिंग। तो हमको फिर उस केस में अलग अलग फोल्डर बना के ये फाइल्स ऐड करनी पड़ेंगी। तो अल्टरनेटिवली हम क्या कर सकते हैं ना, सो आई वांट यू गाइस टू नोट डाउन दिस स्टेप्स। सो अब हमको ये जो हमारा प्रोजेक्ट का फोल्डर है, सो जस्ट राइट क्लिक हियर। अभी एक्चुअली मैंने गिट इंस्टॉल किया हुआ है एंड गिट इज बेसिकली अ वर्जन कंट्रोल टूल विच वी यूज फॉर डीलिंग विद द गिटहब। तो गिट का यूज करके हम जो भी फाइल थे उसको हम पुश कर सकते हैं, पुश इन द सेंस अपलोड कर सकते हैं गिटहब पे। तो अभी गिट बैश मैंने राइट क्लिक किया और गिट बैश हियर पे क्लिक किया, तो यहाँ पे एक विंडो खुल गया, ठीक है। सो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इनिशियली हमको गिट इनिट कमांड देनी होती है जिससे कि ये एक एम्प्टी रिपोजिटरी क्रिएट कर देता है। तो एम्प्टी रिपोजिटरी क्लिक करने के बाद में व्हाट वी हैव टू डू, सो यहाँ पे कोड का जो सेक्शन है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है, तो उसके बाद में यहाँ पे कोई तो एक लिंक दिखाई दे रही है हमको। तो हम क्या करेंगे कि ये जो कॉपी का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे ताकि हमारा जो लिंक है ये कॉपी हो जाए। उसके बाद में ये जो बैश कमांड विंडो है इस पर हम फिर से आ गए और हमको ये करना है कि git remote add then origin, एंड हमने जो भी वो लिंक कॉपी की थी उसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। अगेन मैं रिपीट करता हूँ कमांड, git remote add origin और स्पेस देखिए, उसके बाद में वॉट एवर द URL हमने जो भी कॉपी किया था वो हमको यहाँ पे पेस्ट करना। सो आफ्टर हिटिंग एंटर, अभी क्या हुआ कि वी क्रिएटेड अ लिंक बिटवीन दिस रिपोजिटरी एंड दिस लोकल फोल्डर। पहले यहाँ पे लिंक नहीं था तो वी वुड नॉट बी एबल टू अपलोड द प्रॉपर चेंजेस। अब हमें क्या करना है, तो हमने लिंक तो बना लिया, अभी हमारे ये जो भी फाइल्स है इनको हमको ऐड करना है। बेसिकली टेम्पररीली हमको इसको ऐड करना है कि वॉट एवर द चेंजेस आर देयर वी आर एडिंग देम इन द टेम्पररी फोल्डर। सो गिट ऐड डॉट हम अगर करेंगे और एंटर क्लिक करेंगे तो व्हाट इट विल डू, ये जो भी सारी फाइल्स है ये टेम्पररीली सेव कर देंगे। उसके बाद में व्हाट वी हैव टू डू, गेट commit -m
एंड हमको कोई तो मैसेज देना है, जो कि कोई भी मैसेज दे सकते हैं हम यहाँ पे। सो वी गिव इनिशियल कमिट। सो कमिट का मीनिंग क्या होता है कि जो भी हमारे फाइल्स है इसको हमको सेव करना है। ओके, सो सेव एक बार हमने कर दिया तो ये जो कमांड है इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेविंग द फाइल। सो गेट कमिट, कमिट इज द कमांड एंड हाइफन एम फॉर मैसेज, और मैसेज उसके आगे हमने डबल कोट्स में मैसेज दे दिया, एंटर। तो ये सारी चीजें उसने जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं ऑल फाइल्स इट इज सेइंग क्रिएट मोड एंड यहाँ पे कोई तो कोड है और उसके आगे फाइल का नाम है। तो बेसिकली सारी फाइल्स हमारी सेव हो गई, सेव तो हो गई, बट यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देर आर नो फाइल्स विजिबल ओवर हियर। ये क्यों है कि हमने सेव पुश द चेंजेस, तो हमको पुश भी करना होता है। सो मैं बोलूँगा कि गेट पुश एंड ओरिजिन। ओके, अच्छा, इट इज गिविंग मी सम वार्निंग, so what we can do, git push origin master. Okay, git push origin and hyphen set upstream origin master. ओके, आई थिंक ये इशू ऐसा है कि मेरा गेट में दूसरा वाला ईमेल कॉन्फ़िगर किया हुआ है और यहाँ पे आई एम लॉग्ड इन विद अनदर ईमेल, so I will do that changes for now. Git config user.email then 35 and 16 एंड अब मैं इसको पुश करने का ट्राई करता हूँ। स्टूडेंट्स एक 1 to 2 मिनट में शायद जूम का लिंक बंद हो जाएगा, तो सबको वापस रीजॉइन करना है। या आई थिंक इसको जो भी है कि परमिशन नहीं है ना पुश करना, तो इसीलिए इट इज गिविंग द एरर। तो व्हाट वी विल डू, हम ये जो भी ईमेल है इसको एज अ कोलैबोरेटर ऐड कर देंगे ताकि वी विल हैव द एक्सेस। सो मैनेज एक्सेस, ये आप लोगों को ये नहीं आएगा प्रॉब्लम। Okay, I would have got the invite. I will accept it. Okay, I think वो मैं actually वो दूसरे email से login हूँ, so it is giving me that issue. What I will do, I will copy